So hi guys, so today we are starting with a chapter called as audit documentation. Okay, so the weightage of the chapter would be around 4 to 8 marks. Okay, so now whoever has the notes, please open the notes. We'll be doing audit documentation. It says define audit documentation. Okay, it's basically your SA 230. It says as per SA 230, what it is audit documentation. It basically means you need to remember this definition: records of the audit procedure performed, relevant audit evidence obtained, conclusions reached. Okay, records of the audit procedure performed, relevant audit evidence obtained, and conclusion the auditor has reached. Sometimes it is also called as working paper, it is also called as work paper. It is called working paper, it is also called as work papers. So as per SA 230 audit documentation, it means records of the audit procedure performed, relevant audit evidence obtained, conclusion the auditor has reached. Sometimes it is also called as what? Working papers or work papers. That's first question. Number 2. Explain the objective of the auditor to prepare audit documentation. What is the objective? Exam question. Sir, a sufficient and appropriate record of the basis for the auditor's report. So if I am giving a report, I need to express opinion, and for that I need the basis. For that basis, I need the documentation. So sufficient and appropriate record of the basis for the auditor's report and evidence that the audit was planned and performed as per the SA. And evidence that the audit was planned and performed as per SA. And evidence that the audit was planned and performed as per the SA. ठीक है? So question number 1 बहुत simple था हमारा. What to define objective, define audit document, and उसके क्या objectives है, सीधा एक question आएगा. Then next question. Question number 3. वो explain the purpose or advantage of audit document. क्या होगा सर फायदा? सर एक तो क्या होगा इससे? It helps the auditor. It assists the engagement team to plan and it assists the engagement team to plan and perform the audit. एकदम ढंग से आप audit कर पाओगे. Sir, it assists the engagement team to direct and supervise the audit work. कि भैया आप ढंग से उनको आप supervise कर सकते हो, कौन क्या काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है. It enables the engagement team to be accountable for its work. कि किसने क्या काम किया, तुमने ढंग से काम नहीं किया, चल मैं तेरे को देखता हूँ, तेरे को मैं देखता हूँ, ठीक है. Then it helps in retaining the records of importance for future audit. It helps in retaining the records of importance for the future audit. Documentation संभाल करेगा. It enables the to conduct the quality control as per SQC1. जो भी quality control की जो requirement है सर वो बराबर हो जाएगी. It enables the conduct of external inspection as legal, regulatory and other requirements. तो कल कोर्ट की अगर कोई इनकम टैक्स की इंक्वायरी आती है, सेबी की इंक्वायरी आती है हमारे प्रोवाइडर के ऊपर, तो सर उसके प्रति हमारा डॉक्यूमेंट्स बराबर मेंटेन है. तो पहले से अपन को डॉक्यूमेंट मेंटेन करके चलने का है. सो बहुत सिंपल था. पहला क्वेश्चन था एक्सप्लेन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. नंबर 2 था ऑब्जेक्टिव. दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है. नंबर 3 क्या एडवांटेजेस है. नंबर 4 सर व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. तो हमारा इसका कोड क्या था बच्चों, अपन ने लिखा था क्लासी. क्या कोड है इसका? क्लासी. क्या है क्लासी में सर? करस्पॉन्डेंसेस. करस्पॉन्डेंस इंक्लूडिंग ईमेल कंसर्निंग सिग्निफिकेंट मैटर्स. करस्पॉन्डेंस इंक्लूडिंग ईमेल्स कंसर्निंग सिग्निफिकेंट मैटर्स. एक और सी से क्या आ जाएगा? चेकलिस्ट. एल से लेटर ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन. लेटर ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है. ए से ऑडिट प्रोग्राम. ए से ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है. देन एक और ये आ जाएगा एनालिसिस. एस समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स. आई से इशू मेमोरेंडा. इशू मेमोरेंडा याद करना पड़ेगा. एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है बच्चों? क्लासी. सी से क्या है सर? करस्पॉन्डेंसेस इंक्लूडिंग ईमेल कंसर्निंग सिग्निफिकेंट मैटर्स. एक और सी से क्या हो जाएगा? चेकलिस्ट, ठीक है. एल से क्या होगा? लेटर ऑफ कंफर्मेशन रिप्रेजेंटेशन. ए से क्या आएगा आपका? ऑडिट एनालिसिस. एनालिसिस. एक और आएगा ऑडिट प्रोग्राम्स. एस से समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स. आई से इश्यूज मेमोरेंडा. तो एग्जांपल्स आ गया. क्लासी. डेफिनेशन यहां पर आ जाती है. तो ये 1 and 4 ये दोनों एग्जाम क्वेश्चन है. देन सर व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द फॉर्म एंड द कंटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड्स. बहुत सिंपल है. व्हाट आर द फैक्टर्स, इस पे कि क्या डॉक्यूमेंट करना है, कितना डॉक्यूमेंट करना है, किस पे डिपेंड करता है सर? कार्ड्स में. किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? कार्ड्स में. सी से क्या है सर? कॉम्प्लेक्सिटी एंड द साइज ऑफ द एंटिटी. क्या बोलोगे आप? कॉम्प्लेक्सिटी एंड द साइज ऑफ द एंटिटी. सर ए से क्या आ जाएगा? नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म. नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म. सर आर से आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट. आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट. सर एस से सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन. सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन. देन एम से ऑडिट मेथोलॉजी एंड द टूल्स यूज. ई से नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड. So guys, the code was CARS me. Complexity and the size of the entity, nature of the audit procedure to be performed. R say risk of material misstatement. S say significance of the audit evidence obtained. M say methodology and the tools used. And E से क्या आ जाएगा आपका? nature and extent of exceptions identified. CARS me. Question 6 is audit file. Sir audit file कितनी होती है हमारे पास? दो प्रकार के होते हैं, permanent and current file. So audit file can be defined as one in more folders or other storage media. Physical हो सकती है, electronically हो सकती है. It can be in physical or electronic form containing the records that comprising audit documentation for specific engagement. छोटी सी definition audit file की. 7. Explain the relationship between the audit file and documentation. आपको relation बताना audit file and audit documentation. क्या करने का? पहले audit file का explanation लिख दीजिए जो अपन ने definition पढ़ी. फिर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था वो आप यहाँ पर कॉपी कर देंगे. देन
the auditor shall, very important point for the MCQ, the auditor shall assemble the audit documentation in an audit file and complete the administrative process, administrative process of assembling the final audit file on a timely basis after the date of auditor's report. सर यहाँ पर टाइम नहीं दिया कि आपको क्या करना है, आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठा करना है, ठीक है. द ऑडिटर शैल असेंबल द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इन एन ऑडिट फाइल एंड कंप्लीट द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग द फाइनल ऑडिट फाइल ऑन टाइमली बेसिस. टाइम नहीं दिया, खाली क्या बोला, ऑन टाइमली बेसिस आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. इस पे मॉड्यूल में MCQ है, इस पे ध्यान रखना, इस पे ऑन टाइमली बेसिस. टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम नहीं है यहाँ पर, ठीक है. आपको इकट्ठा करने के लिए क्या बोला, ऑन टाइमली बेसिस. आपको क्या करना है, असेंबल द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, आपको साथ में चलते चलना है, और ऑन टाइमली बेसिस आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. देन ये आ गया असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल. The auditor shall assemble the audit documentation in an audit file and complete the administrative process of assembling the final audit file on timely basis. आ गया. After the date of auditor's report आ गया, but maximum within 60 days. कितने दिन के अंदर? Within 60 days के अंदर. Within 60 days के अंदर. So after the date of audit report, but within 60 days में आपको क्या करना है, अपना सब कुछ इकट्ठा करके चलना है. Changes can be made to audit documentation during the final assembly process if they are of administrative in nature. हाँ, कुछ चेंजेस करना, आप चेंजेस भी कर सकते हो, बट आपको इकट्ठा करके चलना है आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. आफ्टर बहुत इंपॉर्टेंट, एंड विदिन 60 डेज. आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट विदिन 60 डेज. सर अपन कब चेंज कर सकते हैं, ये भी मॉड्यूल में दिया हुआ है. हम लोग हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को कब चेंज कर सकते हैं. सर फॉलोइंग आर द एग्जांपल. कब? सर डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन. 2-3 डॉक्यूमेंट एक साथ आ गए, परचेस फाइल की 3 कॉपी है तो 2 उठा के फेंक दो, एक ही रखोगे आप. सॉर्टिंग, कोलैटिंग और क्रॉस रेफरेंसिंग वर्किंग पेपर्स, लाइक परचेजेस, सेल्स साथ में रखना पड़ेगा, मार्केटिंग साथ में रखना, साथ में अपने वो क्लब करने का. साइनिंग ऑफ ऑन द कंप्लीशन चेकलिस्ट रिलेटिंग टू द फाइनल असेंबली प्रोसेस. चेकलिस्ट अपना सब कुछ हो गया तो साइन करके उसको आप इकट्ठा कर लीजिए. डॉक्यूमेंटिंग द ऑडिट एविडेंस विच ऑडिटर हैज ऑब्टेन एंड डिस्कसिंग विद द एंगेजमेंट टीम बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट डेट. सो ये 4 एग्जाम्पल्स है बच्चों, जहां अपन क्या बोल सकते हैं, अपन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में कुछ भी चेंज करें तो कर सकते हैं अपन. ये 4 एग्जाम्पल्स. सर कितने साल तक संभाल के रखना है. सर डॉक्यूमेंटेशन शुड बी रिटेन फॉर बच्चा 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और द ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट विच एवर इज लेटर. The audit documentation should be retained for how many years? For 7 years, or from the date of signing of audit report or group auditor's report, whichever is later. Sir, ownership किसकी होती है हमेशा? Sir, as per SQC1 क्या बोलोगे आप? Audit documentation is always a property of the auditor. Sir, as per SQC1, the audit documentation is a property of the auditor. He can show some or all working papers, but at his own discretion. Then, start auditor, the principal auditor, the main auditor cannot ask the working paper from the internal branch and subsidiary auditor. बड़ा ऑडिटर छोटे ऑडिटर से नहीं मांग सकता, मांग ही नहीं सकता. हाँ, उसको दिखाएं तो वो खुद दिखा सकता है एट हिज ओन डिस्क्रिप्शन, ठीक है. हाँ, पर एक्सेप्शन कौन है बच्चा? रेगुलेटर. कौन IT डिपार्टमेंट से, BMC, वो मांगे तो दिखाना पड़ेगा आपको. देन रिपीटेड क्वेश्चन, कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी क्या होता है? कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी क्या होता है? So it says the auditor may retain a part of the audit documentation as a summary, also known as completion memorandum. The auditor may retain a part of the audit documentation as a summary, also known as completion memorandum. Then, that describe क्या? Significant matters identified during audit and how they were addressed. Significant matters arising during the audit and how they were addressed. Now, such summary facilitate क्या? Effective and efficient review and inspection of the audit documentation. सर क्या होगा, ऐसा अगर समरी मेंटेन करेंगे तो अपना ऑडिट एकदम मस्त, एकदम अच्छा सा आएगा, एकदम अच्छा लगेगा. स्पेसिफिकली फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट. जैसे रिलायंस जैसी कंपनी है, सर इतना अपन ने चेक कर लिया, अगर समरी ही नहीं बनाई तो पता कैसे लगेगा क्या चेक किया अपन ने. अभी रिलायंस में कितना बड़ा टर्नओवर होता है, कितना सारा चीज़ें होता है, राइट. तो समरी बहुत इंपॉर्टेंट है. द प्रिपरेशन ऑफ सच समरी में ऑल्सो असिस्ट द ऑडिटर कंसिडरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स. वो भी अपने को पता चलेगा इन कंसिडरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, ठीक है. ये आंसर फिर से पढ़िए, रिपीटेड है. क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इट सेज. सर एग्जाम्पल्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है. एग्जाम्पल्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट. ये रट्टा मारना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं इसका. क्या कहता है सर? एग्जाम्पल्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, द कोड इज RCF. सर रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर इंडिकेटिंग दैट द FS इज मटेरियल मिसस्टेटेड और देयर इज अ नीड टू रिवाइज ऑडिटर्स प्रीवियस असेसमेंट ऑफ रॉन्ग एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू दो रिस्क. पहला रिजल्ट्स ऑफ ऑडिटर्स इंडिकेटिंग क्या? हमने ऑडिट प्रोसीजर किया, हमको क्या दिख रहा है कि भैया FS मिसस्टेटेड है, या देयर इज अ नीड टू रिवाइज द ऑडिटर का असेसमेंट जो मैंने किया था कि ये रॉन्ग कितना होगा, एंड हिज रिस्पॉन्सेस टू दोज रिस्क. C, circumstances that cause the auditors significant difficulty in applying the audit procedures. Sir, circumstances that cause the auditors significant difficulty in applying audit procedure. जैसे कहीं ना कहीं मेरे को जाने नहीं दिया, ये बुक्स मत चेक करो, ये फैक्ट्री विजिट मत करो. That circumstances that cause the auditor significant difficulty in applying audit procedures. F, a finding that could result in modification to the audit opinion. सर ऐसी कोई बात जिससे मेरा ओपिनियन चेंज हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? RCF. सो ये हो गया सिग्निफिकेंट मैटर. इनको तो अपने को डॉक्यूमेंट करना ही है बच्चों. सर नेक्स्ट वन इज व्हाट? एग्जांपल ऑफ सिग्निफिकेंट जजमेंट. क्या होंगे सिग्निफिकेंट जजमेंट?
सर रैशनल फॉर द ऑडिटर्स कंक्लूजन व्हेन अ रिक्वायरमेंट प्रोवाइड्स ऑडिटर शैल कंसीडर सर्टेन इन्फॉर्मेशन फैक्टर्स। किस बेसिस पे आप कह रहे हो कि मेरे को इन्वेंट्री चेक करनी है, किस बेसिस पे आप कह रहे हो मेरे को प्रोविजन चेक करना है, कोई लॉजिक कोई रीजन है, उसको हम कहते हैं रैशनल। और बेसिस फॉर द ऑडिटर्स कंक्लूजन ऑन द रीजनेबलनेस और एरियाज ऑफ सब्जेक्टिव जजमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हो गया आपका, तो क्या बेसिस है वहाँ पर। तीसरा, बेसिस फॉर द ऑडिटर कंक्लूजन अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन, बेसिस फॉर द ऑडिटर्स कंक्लूजन अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। तो ये 3 चीज़ आप लोग को डॉक्यूमेंट करनी है। सो मैटर्स के लिए क्या है कोड अपना RCF है, जजमेंट के लिए ये 3 पॉइंट है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, सर इफ द ऑडिटर हैज नो कनेक्शन विद द ऑडिट व्हाई द डॉक्यूमेंटेशन सो इंपॉर्टेंट टू हिम, लाइक फाइन इज गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, हमारे को क्लाइंट जानता नहीं, हम क्लाइंट को जानते, तो हम लोग को क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। सो इफ द ऑडिटर हैज नो प्रीवियस कनेक्शन विद द ऑडिट ही शुड प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टू अंडरस्टैंड क्या क्या, नेचर टाइम एंड एक्सटेंट, इसको हम प्यार से क्या बोलेंगे, NTE, नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड। B, results of the audit procedure performed and the audit evidence obtained, significant matters arising during the audit and conclusion reached thereon, तो अपन ने जो आगे पढ़ा उसी को अपन यूज कर रहे हैं। नंबर 2, in documenting NTE of audit procedure the auditor should record क्या क्या, identifying the characteristics of specific items, B, who performed the audit work and the date of such work performed, who reviewed that audit work performed and the date of such review, किसने काम किया, क्या काम, किसने किस दिन वो कंप्लीट हुआ, किसने वो वर्क को रिव्यू किया एंड द एक्सटेंट ऑफ सच रिव्यू। थर्ड, the auditor shall document the discussion of significant matters with the management and TCWG, including क्या क्या, the matter when and with whom the discussion took place. If the auditor has identified information which is inconsistent with the auditor का final conclusion, क्या करना पड़ेगा, he should document how he address those inconsistency। तो ये 4 पॉइंट का आंसर है, ठीक है। लंबा आंसर इसको एक बार फिर से रीड कर लीजिए, रीड, ये भी मॉडल का क्वेश्चन है, रीड कीजिए। आई एम हियर ओनली। डन, ठीक है। सो रेफर TYU है 1 and 2 एंड केस स्टडी पेज 6.12 ISM मतलब ICI स्टडी मॉडल, तो ये आपको पढ़ना है, रेफर TYU। क्लियर हो गया, चैप्टर इज ओवर, ठीक है। सो बहुत छोटा सा चैप्टर है, हाथ का इसको रिवाइज करना है, हाथ का आपको मॉड्यूल से सॉल्व करना है, पीछे के जो TYUs है वो सॉल्व करने हैं, केस स्टडी जो है पेज 6.12 पर है, प्लीज उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। चैप्टर इज ओवर, बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय एंड एम फॉर अ रैंक और 70+ whichever is earlier, बाय, टेक केयर।